Guys, welcome to our YouTube channel, and in this video we will see the introduction about the Java, and in a complete tutorial we will see about Java from basic to advanced. So all the concepts, all the related practical knowledge also we will see one by one. Video will be uploaded. You can watch the videos one by one and you can learn Java from basic and advanced. We will also cover advanced topics also, collections and JDBCs also, and then we will go also for the frameworks like Hibernate, Spring Boot. Okay, so one by one we will cover. And first of all, in this tutorial we will see the basics of Java basic concept, so that we can reach to make applications. Okay, so the first video, this is the first video where we will see what is history about Java, little history about Java. What is it, what type of applications we can make, what type of applications we can develop by this, what are the features of it, we will try to cover in this video. So let's start. ओके, सो जावा के थोड़ी सी स्टोरी जो कि जानने के लिए जाने तो जावा जो है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में क्रिएट की गई थी। ठीक है, और आज बात करें तो आज 3 बिलियन से डिवाइस जो कि रन कर रहे हैं जावा पे। ठीक है, एंड जावा क्या है, तो जावा एक हाई लेवल रोबोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा लैंग्वेज के बारे में ये भी है कि जावा जो है डेवलप की गई थी सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा, जो कि सब ऑर्डिनरी है ओरेकल्स की, एंड इट इज़ इन 1995. एंड जेम्स गोसलिंग, अबाउट जेम्स गोसलिंग इज फादर ऑफ जावा लैंग्वेज बिकॉज इट डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एंड सन माइक्रो सिस्टम, जो कि ओरेकल की सब ऑर्डिनरी है। ठीक है, एंड बिफोर जावा जो इसका नाम था वो था ओक, इसका नाम था ओक। बट क्या था कि ओक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी, तो इसका नाम चेंज करना पड़ा। तो जेम्स गोसलिंग ने और उनकी टीम ने इसका नाम ओक से फिर जावा रखा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जावा लिटिल हिस्टोरी। ओके, क्यों यूज़ किया जाता है जावा का, तो जावा का बेसिकली यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, desktop applications, web applications, we can develop the web applications also, and servers like web servers and application servers we can create by the Java. We can create games also, database connection also, and many more things that we can develop by the Java. ओके, सो वाई जावा यूज मीन्स ऐसे क्या फीचर्स है कि जिसकी वजह से जावा यूज़ करते हैं, बिकॉज इन मार्केट सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर. So why? So Java works on different platforms. So there are the advantages, we can say what are the advantages and why we use Java. So first is it can work on different platforms like Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. So this is lots of platform it can work. Okay, and it is most powerful programming language in the world. And about the learning, so it is easy to learn and simple to use. Easy to learn and simple to use. It is open source and freely it is available for us. And about the power, so it is secure, fast and powerful languages, and huge community support. Means if we talk, so many people are working on it. So 10 tens of millions of developers it is working, so there is a huge community supports working. Okay, and Java is also called object oriented language, which give you clear structure to program. Means how to create a program. So clear structure you will you have available to create develop any applications. So it is a object oriented language. Okay, allow code to reuse. Means and there is so many ways that we can reuse the code that we developed earlier, lowering by the developers, and low cost is also low, very low cost we can develop the Java application, and it is secure. The best thing is about secure, as Java is close to C++ and C Sharp. We will see. Okay, if we will see C++ and C Sharp, so it is closer to Java.
It makes easy to programmers to switch to Java or vice versa. Means if a developer has knowledge about C, C++ and C sharp, so developer directly can switch to the Java, and Java to C. It means easy to learn. If we have prior knowledge about C, C++ or C sharp, so Java learning is become easy. Or Java we have knowledge, then C++ and C sharp is also easy. Okay, so the application that we can develop by the Java, so what type of application? So there are four categories that we divided. Standard application we can develop by the Java, web application, enterprise application, and mobile applications we can develop by the Java. So these are the four type of application that we can develop by the Java. So what is this one by one? Let's see. The first, ओके, तो फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को हम ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, इन्हें डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस भी कहा जाता है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑनलाइन मीन्स व्हाट इफ वी वांटेड टू रन इट, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक अ ब्राउजर और एनीथिंग. सो ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्ड ऑनलाइन. ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट वी नीड टू इंस्टॉल, यदि समझना चाहो कि स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, तो वो सारे सेटअप्स जो कि इंस्टॉल करना पड़ता है जिन्हें हमें, लाइक मीडिया प्लेयर, एनी प्लेयर्स, मीडिया म्यूजिक प्लेयर, एंटीवायरस, तो ये सारे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस. ओके, एंड डेवलप जो होता है ये ज़्यादातर होता है AWS, स्विंग, इनका यूज़ किया जाता है. जावा के ये पार्ट्स है जो कि क्रिएट स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये इन्हें इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, और लाइक इन सिंपल वर्ड वी कैन से सेटअप जो क्रिएट किया जाता है, सेटअप, मीडिया प्लेयर्स, एंटीवायरस, ये कैटेगरी जो आती है स्टैंडर्ड ऑन एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि जावा के AWS एंड स्विंग के द्वारा डेवलप किए जाते हैं. नेक्स्ट आती है वेब एप्लीकेशन. तो वेब एप्लीकेशन ऐसी जो कि ब्राउज़र पर रन होती है, जिस सारी एप्लीकेशन जो कि ब्राउज़र पर रन होती है वो वेब एप्लीकेशन होती है, जो कि सर्वर साइड पर रन किया जाता है. ठीक है, एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन सर्वर साइड एंड क्रिएटेड डायनेमिक वेब पेज इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशंस. करंटली जो हम बात करें कि कैसे डेवलप होते हैं वेब एप्लीकेशन, तो जावा में सर्वलेट का यूज़ करके JSP, स्ट्रक्टर, स्प्रिंग, हार्बनेट, GSF, इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वेब एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट है इंटरप्राइज एप्लीकेशंस. इंटरप्राइज एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जो कि हैवी एप्लीकेशंस होती है, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस. तो इनका नेचर यदि बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेसेस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती है और टुगेदर वर्क करती है, इसलिए ये हैवी टाइप एप्लीकेशंस कहा जाता है, बैंकिंग एप्लीकेशंस. ओके, तो ये इस कैटेगरी में आती है इंटरप्राइज एप्लीकेशंस. इट हैज़ एडवांटेज लाइक अ हाई लेवल सिक्योर, हाई लेवल, ये जो होती है हाई लेवल्स होती है, हाई लेवल एप्लीकेशंस होती है, इनका लोड बैलेंस होता है, क्लस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये डेवलप कैसे किया जाता है, EJB का यूज़ किया जाता है इस तरह टाइप की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए EJB का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होते हैं लास्ट कैटेगरी जो है मोबाइल एप्लीकेशंस. ऐसी एप्लीकेशन जो कि मोबाइल डिवाइस के लिए क्रिएट की गई है, मोबाइल डिवाइस के लिए क्रिएट की गई है, मोबाइल डिवाइस के लिए पर रन होती है, वो मोबाइल एप्लीकेशन कहा जाता है. और बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा के एंड्रॉयड, जावा एमी मोबाइल इंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, आई होप दिस आर द 4 कैटेगरीज दैट ऑफ एप्लीकेशन दैट वी कैन डेवलप बाय द जावा. नाउ इसी प्रकार से हमने इसे 4 प्लेटफॉर्म में डिवाइड भी कर दिया है. जावा के प्लेटफॉर्म्स जो कि मोस्टली आप सुनोगे J2SE, J2ME, J2EE. तो ये इनका मतलब क्या होता है, J2SE में से जावा स्टैंडर्ड एडिशंस, जावा एंटरप्राइज एडिशंस, J2ME, J2EE means enterprise editions, J2ME means micro edition, and Java FX. So these are the 4 platforms, or we can also say editions of Java. So what is it one by one? Let's see. Okay.
Okay, so the first standard editions जावा स्टैंडर्ड एडिशन J2AC। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म्स है, ये जावा के बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है। बेसिक एपीआईज लाइक जावा लिंक, जावा आईओ, जावा डॉट नेट, जावा यूटिल्स, जावा एसक्यूएल्स एंड जावा मैथ्स, ये पैकेजेस को इंपोर्ट किए जाते हैं इसमें, ठीक है। इट इंक्लूड कोर टॉपिक्स लाइक स्ट्रिंग, oops concept, regex, exceptions, inner classes, multi-threading, IO streams, networking, AWS, AWT, swing, रिफ्लेक्शंस एंड कलेक्शंस, ये कैटेगरीज में आते हैं। सो ये जावा का फर्स्ट प्लेटफॉर्म J2AC कहा जाता है। जब भी कोई बात करें व्हाट इज़ J2AC, तो इन चीज़ों को यूज़ करके जो डेवलप किया है तो वो J2AC के आते हैं। तो हाउ डू यू हैव नॉलेज ऑफ J2AC? सो दिस आर द टॉपिक्स यू मस्ट हैव द नॉलेज, देन वी कैन से वी हैव द नॉलेज अबाउट J2AC, जावा स्टैंडर्ड एडिशंस। ओके, नेक्स्ट इज जावा J2EE, मीन्स J2EE, जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ओके, सो इसमें जो डेवलप की जाती है एप्लीकेशन है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कहा जाते हैं, ठीक है, और वेब एप्लीकेशंस भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इट बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द जावा AC, मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन के टॉप पे जो आती है वो प्लेटफॉर्म होता है J2EE, ठीक है। इट इंक्लूड द टॉपिक्स जो आते हैं सर्वलेट्स, JSP, वेब सर्विसेज, EJB एंड JPA, जावा पर्सिस्टेंट APIs। ओके, सो ये सारी कवर करते हैं जो जावा एंटरप्राइज एडिशंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इससे हम कौन सी एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो माइक्रो एडिशंस J2ME, मीन्स जावा माइक्रो एप्लीकेशन। और माइक्रो प्लेटफॉर्म्स होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्लेटफॉर्म एंड दैट इज़ डेडिकेटेड टू बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट J2ME, मतलब कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। लास्ट होता है J2FX, इट इज़ यूज्ड टू डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशन लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन। इट इज़ अ लाइट वेट यूजर्स इंटरफेस APIs, लाइट वेट यूजर, so there is users who interact with this type of applications. Okay, so this is the basic about the Java interactions. Okay, I hope you like this video. Thank you for watching this video, and please like, share and comments if you like. We will make more videos better than this videos. Okay, so thanks for watching.